Welcome, gentlemen, to the Civil Officer Defense Academy. As all of you know, okay, we are going through that live sessions for the NDN CDS 1 2026 already, and we are here with a new topic, landforms. Earlier in the last class, due to some technical glitch, this was not completed, or it had a lot of uh, distractions or other types of uh, disturbances as well, which caused it incomplete, and almost it was not good at all. Okay, due to some technical glitches. That's why I'm here with again with it, so I can uh, explain it in much better way to all of you. And other than that, you already know the all of the classes been going on. Like today there will be class of ma'am English, Divyanshi ma'am English classes, Rajput sir with math classes, and there is Shivam sir with the biology as well. Okay, so let's move forward with the geography sessions and the landforms we are doing today. Uh, the first thing, we have done the geomorphic process. Geomorphic process, in that we have learned about the weathering. And the weathering, due to weathering, there are two things that happens: is erosion and deposition. And that erosion and deposition causes formation of lot of multiple landforms on the Earth's surface. Whether it's erosion or deposition, we see there is a various changes in what land in landform. Okay, like if a erosion of mountains happens, if erosion of landform happen, river happen, there were multiple kind of landforms forms around that particular earth surface, and that this we call landforms. Okay, and we have divided landforms into four parts. uh, what are these? First one is the, we call it fluvial. We call it fluvial. That causes due to the flow of water. Okay, then we comprises aeolian, that happen due to uh, movement of air. Then there is a cast, that actually happen due to the uh, calcium. There is another one, glaciated as well, glacier, that rises due to what? Glacier formation, due to glacier. Okay. Movement of glacier causes multiple formation of multiple landforms. It is this. Okay. So we are going to have all these landforms. First one is the aeolian. First one is the fluvial, in which we'll about flow. We will see formation of landform due to the flow of water. A flow of water happens in two places. First one is a river. First one is a river. Another one is a ocean. Okay. So we are about to see the river landform. The river landform. The first one is the, you need to understand कि there is a stages of rivers. हमें पता लगता है कि भाई रिवर्स की कोई होती है, कुछ स्टेजेस होती हैं जो कि मूव करती हैं. कुछ स्टेजेस की बात करें तो पहली स्टेज जो होती है उसकी यूथ होती है, दूसरी मेच्योर होती है, तीसरी ओल्ड होती है. जैसे कि आप यंग एज में, यूथ में काफ़ी बॉय काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, वैसे यूथ में भी हमारी नदी जो होती है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटेड रहती है. एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ इरोजन, डिस्ट्रक्शन. मतलब इसकी एनर्जी और पावर इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कई सारा क्या देखते हैं, डिस्ट्रक्शन देखते हैं. अभी मेन चीज़ की, और मेच्योर में आप के कुछ स्लो हो जाती है. इस वाले में जो अपन देखते हैं पहले देखने से पहले, अ, तो पहली बात तो रिवर के जो यूथ यूथ स्टेज और मेच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज के बारे में बता रहा हूँ. ये एक एक्सोजेनिक एजेंट है. कैसा है? एक्सोजेनिक एजेंट है, मतलब कि जिसमें हम बाहर से अर्थ के टोपोग्राफी चेंज करते हैं. बाकी तो आप जानते हो कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ
landforms on the earth surface. First one is the endogenic, that is within the earth. Other one is exogenic, that is over the earth surface. Okay, ओवर द अर्थ सरफेस जो फोर्सेज होते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्सेज होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल हो गया है ना, अदर फोर्सेज इन विच रिवर्स आर द प्राइमरी एक्सोजेनिक एजेंट्स कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू लेवल द स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी। एंड ये जो रिवर है एक ऐसा एक्सोजेनिक फोर्स है इसमें, फ्लो में, इसके पानी में, कि ये बार बार जो लैंडफॉर्म्स बने हैं उनको मल्टीपल शेप देती रहती है और उन्हें स्ट्रक्चर करती रहती है। ठीक है। पहली बात करें तो अपन को जो सबसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ क्या मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स में तो पहला सबसे कॉमन है टेक्टोनिक, जो कॉन्टिनेंटल ओशियन बेसिन है सबसे पहले वो बने। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ओशियन बेसिन सबसे पहला लैंडफॉर्म है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर में माउंटेन एंड प्लेट्यूज आते हैं जो कि अपने एंडोजेनिक फोर्सेस के बनते हैं। और थर्ड ऑर्डर में आते हैं अपने वैलीज, क्लिफ एंड ड्यून, जो कि सारे एक्सोजेनिक फोर्सेस से बनते हैं। ठीक है। तो दीज आर द थ्री ऑर्डर्स ऑफ फिजियोग्राफी और थ्री ऑर्डर्स ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन। अब आप करते हैं अपन फ्लूवियल की बात कर रहे थे, तो फ्लूवियल जो होता है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म में दो चीजें अपन को देखने को मिलेंगी, इरोजन एंड डिपोजिशन। तो इरोजन को देखते हैं पहले, और इरोजन के मेनली सारे रिस्पॉन्सिबल रीजंस को भी देखते हैं। तो इरोजन को जो मेनली रिस्पॉन्सिबल रीजन है कि इरोजन में पहली बात तो सबसे पहली एक्टिविटी जो होती है वो ये होती है कि पहला तो पानी जो है के सरफेस से टकराता है, किसी भी सरफेस से या किसी भी लैंडफॉर्म से टकराता है, तो उसकी वजह से, उसमें टकराव की वजह से, उसके फोर्स की वजह से वो उसमें क्रैक्स आते हैं या वो टूट जाता है। और जब वो टूट जाता है इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक एक्शन। जब वो टूट जाता है तो ऐसे कुछ स्टोन्स बन के नीचे गिर जाएगा, लेकिन पानी की फ्लो की वजह से वो ऐसे लुढ़कता हुआ रहेगा। जो लुढ़कने वाले पार्ट को बोलते हैं हम एब्रेजन। क्या बोलते हैं? एब्रेजन। ये इसको हम सैंड पेपर इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बार बार रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से बिल्कुल चिकना हो जाएगा। उसके बाद घूमते घूमते उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े। अब वो पानी में बहने लगेंगे। क्या करेंगे? पानी में बहने लगेंगे, दैट इज कॉल्ड। अब वो आपस में भिड़ने की वजह से वो टूटेंगे, एंड ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। क्या हो जाए? छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए, जो कि पानी में तैरने लगेंगे, पानी में तैरने लगेंगे, सस्पेंड होने लगेंगे, और वो धीरे धीरे वो इतने ज्यादा आपस में कोलाइड करेंगे, वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सॉल्यूशन में, बिल्कुल पानी में घुली जाए। ओके। तो दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ इरोजन हमें देखने को मिलती हैं। पहला तो हाइड्रोलिक एक्शन, देन एब्रेजन, देन एट्रिक्शन, एंड देन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। दिस इज एंड दिस इज द पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन स्टेज की बात करें तो पहले क्या हुआ कि पहले तो वो टूटा, ट्रैक्शन हुआ, ट्रैक्शन के बाद वो सॉल्टेशन हुआ, लुढ़कता छोटे छोटे टुकड़ों में होता गया, और छोटे छोटे टुकड़ों में होते हुए फिर वो आया सस्पेंशन में, ऊपर लटकने लग गया, देन आफ्टर वो सॉल्यूशन। क्लियर? दिया। ओके। अब इसकी वजह से जो ये टूट खटाव जो सारी चीजें हो रही हैं, इनके पर्टिकुलर तरीके से कुछ पर्टिकुलर लैंडफॉर्म्स बनेंगे। आपको पता है जो नदी है आपकी ऐसे कुछ करके से घूमती हुई जाती है, तो इसमें आपका पानी यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, तो इन जगहों पे अपन को मल्टीपल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जहाँ पे ये टकराएगा और जहाँ से ये इसको काटेगा, इस पर्टिकुलर जगह को वो काटेगा, दिस इज कॉल्ड कट बैंक। इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कट बैंक, क्योंकि इसमें बार बार पानी पड़ रहा है और इसकी वजह से इसमें इरोजन होगा। दूसरा पार्ट यहाँ पे जो है, यहाँ पे पानी बिल्कुल टेंजेंशियली जाएगा, तो यहाँ अपने साथ जो सामान ला रहा था उसको यहाँ छोड़ते हुए जाएगा, तो यहाँ पे तो सैंड इकट्ठी हुई दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड पॉइंट बार। ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, यहाँ पे इरोजन हो रहा है, वहां पे तोड़ रहा है, यहाँ पे जमा कर रहा है। ठीक है, लो वेलोसिटी की वजह से वहां पे हाई वेलोसिटी है और यहाँ पे लो वेलोसिटी। क्लियर? बाकी अपन को स्टेजेस के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो स्टेजेस की क्या क्या बात कर रहे थे? फिर अपनी जो नदी है वो बेसिकली तीन स्टेजेस में रहती है। पहली कौन सी स्टेज है? ये पहली स्टेज है अपनी यूथ, फिर है मेच्योर, फिर है ओल्ड। ठीक है। तो यूथ में आपको पता है कि पानी जो होता है बहुत ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि वो पहाड़ों से उतर रहा होता है, ग्रेविटी भी काम कर रही होती है उसके साथ में, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है। दिस इज वी कॉल्ड यंग स्टेज ड्यू टू द हाई स्लोप, ड्यू टू द हाई स्लोप। इसकी वजह से अपन को मल्टीपल कैसे तीखे लैंडफॉर्म्स बनने को देखेंगे, जो कि इसकी, क्योंकि जब पानी तेज है, स्पीड में है, तो ये कटाव ज़्यादा करता होगा, इसकी वजह से अपन को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? इरोजन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इरोजन देखने को मिलेगा।
और इरोजन की वजह से मल्टीपल लैंडफॉर्म जैसे कि वी शेप वैली, कटिंग बैक, वाटरफॉल, जॉर्जेस रैपिड, ये अपन को बहुत कॉमन देखने को मिलेंगे किसकी, यूथ स्टेज में, नदी की यूथ स्टेज में, यंग स्टेज में। देन आफ्टर इट कम्स इनटू द मेच्योर स्टेज, यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, तो इसकी वजह से नदी की स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नदी को स्पेस भी मिल जाता है काफी सारा, और तो उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, तो इरोजन कम हो जाता है, जहाँ पे इरोजन और डिपोजिशन दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं पे अपन को फ्लड प्लेन, कहीं पे ऑक्सबो लेक, कहीं पे मेंडर्स, ये अपन को मल्टीपल चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी इन ईयर मेच्योरिटी स्टेज। मीन वाइल इन ओल्ड स्टेज, ऐसे ओल्ड एज की बात करते हैं तो ओल्ड एज में बिल्कुल ही हम हमारी ताकत क्षमताएं खत्म हो जाती हैं, वैसे ही यहाँ पे नदी की क्षमताएं भी खत्म हो जाती है काय की काटने की। अब यहाँ पे वो सिंपल रास्ता ढूंढ रही होती है कहीं से भी निकलने का, और उसके साथ जो इरोजन का जो सामान लेके आई होती है वो यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉप कर देती है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं रहती कि उसे भी साथ ले जा सके, तो वो फिर पतले पतले रास्तों में ऐसे डेल्टा फॉर्मेशन करती हुई जाती है। दैट इज कॉल्ड ओल्ड स्टेज। ओके, दीज आर सम स्टेजेस हम बात कर रहे थे। बाकी हमने कट बैंक और पॉइंट वार के थ्रू हमने इरोजन देखा और डिपोजिशन को समझा कि डिपोजिशन में इकट्ठा हुआ, कट इरोजन में कटेगा। अब आते हैं दूसरे फॉर्मेशन पे, जब हम देखते हैं कि नदी जब जाती है तो नदी, अब आपको पता है नदी सीधी आ रही है तो वो आसपास में अपने साथ लाई हुई सामान को इकट्ठा करते हुई जाती है। ओके, और वो इकट्ठा हुआ सामान एक टाइम पे एक पहाड़ी टाइप का या एक बॉर्डर टाइप का स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसके अंदर नदी बहती है और ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड एरिया रहता है। कैसा एरिया रहता है? अपलिफ्टेड एरिया रहेगा, सॉरी। ये कैसा रहेगा? अपलिफ्टेड एरिया रहेगा, जो सारा कोर्स का मटेरियल है वो यहाँ पर साइड में इकट्ठा होता जा रहा है, और बीच में जो नदी है वो डीप में है, और उसके आसपास का मटेरियल जो ऊपर की तरफ हो रहा है, दैट इज बॉर्डर एरिया, दैट इज अपलिफ्टेड एरिया, इसको बोलते हैं हम नेचुरल लेवी। क्या बोलते हैं? लेवी। ओके, एंड देन देयर इज फ्लड प्लेन, दैट इज फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या होता है? जब नदी इस बॉर्डर के पार करके आ जाए तो इसका मतलब बाढ़ आ गई, इसका मतलब बाढ़ आ गई, इट इज कॉल्ड फ्लड प्लेन। ठीक है, और बाकी जो नदी के आसपास का पूरा एरिया होता है उसे एलुवियम फैन कहते हैं। क्यों? कि जब नदी की बाढ़ आती है तो नदी अपने साथ बहुत पानी दूर तक चला जाता है, जैसे कि आपने बरसात में देखा होगा, नालों में जब पानी भर जाता है और वो जब पानी वापस जाता है तो वो काला काला से गंदगी पूरी तरफ छोड़ जाता है, क्योंकि उसमें उतनी ताकत नहीं रहती कि वो जो साथ लाया था उसे वापस ले जा सके। ऐसे ही जब नदी जब आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, जब वापस जाती है तो अपने साथ जो मिट्टी वगैरह लाई होती है उसे वहीं छोड़ जाती है, और वो मिट्टी कैसी है? फ्रेश, और फ्रेश मिट्टी अपने यहाँ क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल। यहाँ पे फॉर्मेशन अपन को दिखने, एलुवियल फैंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब जब, और नदी के जस्ट साइड में कोई छोटी सी स्ट्रीम गुजर रही हो जो बाद में ही नदी का सोर्स हो, तो दैट इज कॉल्ड याजू स्ट्रीम। क्या बोलते हैं उसे? उसको बोलते हैं याजू स्ट्रीम। ओके, ये अपन को मोस्टली नदियां जो है आपको पता है नागिन की तरह घूमती हैं, और ये अपन को मोस्टली मेच्योर स्टेज में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इरोजन और डिपोजिशन दोनों देखने को मिलता है। तो पहली बात तो नदियां ऐसे जब नागिन की तरह मेंढक में घूमती हैं तो जो ऐसा जो कट में ये गहरा होता जाता है, ये मोटा होता जाता है, तो ऐसे करते करते ये बार, ये जो अपन जो इसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि ये जो यहाँ पे जो पानी बार बार पड़ रहा है तो ये पार्ट गहरा होता जाएगा, यहाँ पे डिपोजिशन होता जा रहा है तो ये पार्ट मोटा होता जाएगा। यहाँ पे क्या होता जा रहा है? यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है पॉइंट बार पे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बार पे क्या हो रहा है? डिपोजिशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कटिंग हो रही है, तो ये गहरा होता जाएगा, तो ऐसे करके एक शेप क्रिएट होता जाएगा, ये मोटा होता जाएगा, ये गहरा होता जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं मिएंडर। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिएंडर, और इनके इन पार्ट्स को बोलेंगे हम मिएंडर नेक। क्या बोलेंगे? मिएंडर नेक। अब आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट मोटा होता जा रहा है, अब लेकिन यहाँ पे भी तो पानी टकरा रहा है। पहले तो यहाँ पे पानी जमा हो रहा था तो ये तो मोटा होता चला गया, लेकिन अब यहाँ पे पानी भी टकरा रहा है तो ये कटने लग गया है। ये वाला पार्ट क्या होने लग गया है? इसका कटने लग गया है। जब ये वाला पार्ट कटने लग जाएगा तो एक टाइम होगा कि ये पूरी तरीके से
कट हो जाएगा, पूरी तरीके से कट हो जाएगा और कुछ ऐसा कट ऑफ एरिया बन जाएगा। अब नदी बिल्कुल सीधे भी जा सकती है और कुछ पानी ऐसे घूमते हुए जाएगा, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो बहुत कम हो जाएगी। अब यहाँ पे जो स्पीड कम हो गई और यहाँ पे फिर क्या होने लगेगा, यहाँ पे क्या मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब स्पीड सीधे सीधे निकल रही है और यहाँ पे आप देखोगे मोरे जो है मटेरियल सेडिमेंट इकट्ठे होने लग जाएंगे और धीरे धीरे इसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। इसको नदी से बिल्कुल क्या कर देंगे, कट कर देंगे। नदी से बिल्कुल क्या कर देंगे, कट कर देंगे, हटा ही देंगे। नदी में आप इसका कोई, नदी से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक, इसे हम बोलेंगे क्या, ऑक्सबो लेक। क्लियर। दिस इज कॉल्ड ब्रेडेड चैनल्स। ऐसे मल्टीपल वेज में जो रिवर्स देखने को मिलेंगी अपन को, ये डेल्टा में मोस्टली देखने को मिलती है। जब नदी में इतनी ताकत नहीं रहती तो वो मल्टीपल छोटे छोटे चैनल से होके निकल रही होती है, इधर उधर आस पास से, बीच में आइलैंड को छोड़ते हुए, या फिर बहुत ज्यादा हार्ड रॉक वाले एरिया में, तो वहां से, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेडेड चैनल। क्लियर। अब यूथ स्टेज की बात करें तो अब यूथ स्टेज के सारे लैंडफॉर्म्स को देख लेते हैं। यूथ और सारे, अभी अपन ने इरोजेशन इरोजन और डिपोजिशन को समझ रहे थे, लेकिन अब अपन देख लेते हैं पूरे लाइन बाय लाइन कि भाई पहले यूथ स्टेज में क्या बनता है, फिर मेच्योर में क्या बनता है और ओल्ड में क्या बनता है और कैसे ये दिखते हैं। तो पहली बात तो यूथ स्टेज में आपको पता है जो पानी है वो सीधा गिरता है, सीधा ऊपर ग्रेविटी के फोर्स की वजह से गिरता है, तो हमें मल्टीपल चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें अपन को वी शेप वैली देखने को मिलेगी, वी शेप वैली देखने को मिलेगी, एंड कैनियंस भी देखने को मिलेगी। एंड कैनियंस, कैनियंस और वी शेप वैली में क्या अंतर है, वी शेप वैली वी शेप रहेगी और कैनियंस कैसे रहेंगी, ऐसे स्ट्रेट, और इसमें सीढ़ियाँ भी होंगी, और यू शेप वैली बिल्कुल यू शेप्ड होगी। ठीक है। ये कैसे बनेंगे, जब नदी आई थी तो नदी बिल्कुल तीखा हुआ काटती हुई चली गई, नीचे तीखा हुआ काटती हुई चली गई, जिसकी वजह से ये जो पहाड़ है यहाँ पे जो वी शेप वैली बनती चली गई। यहाँ पे जहाँ से नदी आई, नदी को रास्ता चाहिए तो नदी इन सारे एरिया को काटती हुई आ गई, दैट इज कॉल्ड वी शेप वैली। उसके अलावा कहीं पे भी जहाँ पे ऐसे ये पहाड़ी खत्म होगी तो वहाँ से ये ड्रॉप मारेगी, और ड्रॉप मारेगी तो नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी तो क्या बन जाएगा, वाटरफॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटरफॉल। और जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे एक गड्ढा बन जाएगा, उस गड्ढे को क्या बोलेंगे हम, प्लंज पूल। क्या बोलेंगे, प्लंज पूल। उस गड्ढे को हम क्या बोलेंगे, प्लंज पूल। ठीक है। अब इसी इसी चीज को हम क्या करते हैं, ये जो है पानी तेज, अब इसमें एक और गेम होता है हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का। किसका, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का। कई हार्ड रॉक जिसमें कैल्शियम कम होता है और सॉफ्ट रॉक जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। तो कैल्शियम वाली जो वो होती है सॉल्यूट, कैल्शियम सॉल्यूबल होता है पानी के साथ, तो वो रॉक जल्दी इरोड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये जो वाटरफॉल है, ये पानी जो गिर रहा है यहाँ पे, अगर हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का कॉम्बिनेशन है, तो ये वाटरफॉल सीधा नहीं दिखाई देगा, इसमें क्या दिखाई देंगे, वो सीढ़ियाँ टाइप की दिखाई देंगे। क्या, कि पानी टप एक सीढ़ी बाय सीढ़ी आ रहा है, तो जो हार्ड रॉक है वो रहेगा, ये सॉफ्ट रॉक है वो इरोड हो गई। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कैटरैक्ट। क्या बोलेंगे, कैटरैक्ट। ठीक है। अब इसी को मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगा दूं ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड में, तो इसमें अपन को कई जगह पे सॉफ्ट रॉक तो इरोजन हो गई, लेकिन हार्ड रॉक एज इट इज रह जाएगी। तो जो पानी आ रहा है वो पानी इनसे उछलेगा, फिर इधर जाएगा, फिर उछलेगा, फिर इधर जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम रैपिड। क्या बोलते हैं, रैपिड। और रैपिड के बारे में आपने काय में पढ़ा होगा, रैपिड आप जब क्या करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं तो बोलते हैं रैपिड आ गया, रैपिड आ गया, तो दैट इज रैपिड। क्लियर। उसके अलावा यहीं पे हमें पॉट होल्स भी देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, पॉट होल्स। पॉट होल्स क्या हो, जब मेनली क्या हो, आपकी रिवर, पूरी रिवर का बेस जो हो पूरा हार्ड रॉक हो, उसके बीच बीच में कहीं सॉफ्ट रॉक हो। यहाँ पे तो बीच बीच में हार्ड रॉक आ रही है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में सॉफ्ट रॉक है, तो सॉफ्ट रॉक वाले एरिया क्या हो गया, पूरा हट गया, तो बीच में छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे, बाकी पूरी रिवर अपनी सेम बहती रहे। क्लियर। ओके। अब आ जाते हैं मेच्योर स्टेज पे। मेच्योर स्टेज में कैसे चीजें बनेंगी भाई, एनीवन। अभी अपन ने बात ही कर रहे थे, इसमें जो होगा लेटरल इरोजन देखने को मिलेगा अपन को। लेटरल इरोजन यानी लेट स्ट्रेट ऐसा, उसमें गिरने की वजह से उसकी ग्रेविटी और एलिवेशन की वजह से इरोजन मिल रहा है। यहाँ पे हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल बेसिस में इरोजन देखने को मिलेगा।
ओके, यहाँ पे वैलीज जो होंगी वाइडर हो जाएंगी, क्योंकि सीधा सीधा नदियाँ चौड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ऐसे इरोजन होने की जगह ऐसे इरोजन, तो नदी अपन को वाइडर शेप में दिखेंगी। उसके बाद मियंडर्स देखने को मिलेंगे, जो अपन ने बात की, क्योंकि नदी ऐसे फ्लो कर रही है हॉरिजॉन्टल वाली चीज़ों पे ज़्यादा, तो मियंडर फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, और फ्लड प्लेन दिखेंगे, नेचुरल लिवीज दिखेंगी। मैच्योर स्टेज में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके। हम्म। तो जो अपन मैच्योर इसको बोलते हैं लेटरल इरोजन, और जो इस यंग स्टेज में जो हो रहा था वो था कौन सा? वर्टिकल इरोजन। कौन सा? ये वर्टिकल इरोजन का। यहाँ पे वर्टिकल इरोजन देखने को मिल रहा है, मेनली पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, इसलिए, और इरोजन फॉर्मेशन, इसकी वजह से ये अपन को फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल लैंडफॉर्म देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लेटरल इरोजन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मोस्टली इरोजन खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पे अपन को डिपोजिशन देखने को मिलेगा ज़्यादा, जो भी सामान लेके आई थी उसे बस वो ड्रॉप ही करती हो जाएगी। यहाँ पे अपन को हाईएस्ट टू हाईएस्ट क्या देखने को मिलेगा? डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है। डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे जो एरियाज है वहाँ पे सामान इकट्ठा हो जाएगा, वो एक आइलैंड का फॉर्मेशन ले लेंगे लंबे टाइम में, दैट इज कॉल्ड डेल्टाज। बीच नदी में छोटे 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 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। वास्ट फ्लड प्लेन देखने को मिलेगा, जहाँ पे नदी पहले हुआ करती थी, नदी सिकुड़ गई, अब जो भी सामान लेके आ रही है आसपास छोड़ती हुई जा रही है, दैट इज कॉल्ड वास्ट फ्लड प्लेन, मतलब बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स बीच बीच में। और डिस्ट्रीब्यूटरीज, और ये ट्रिब्यूटरीज होती है जब नदी में आके मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटरी जब वो नदी बट जाती है अलग अलग चीज़ों में, तो जिससे ये नदी पूरी बट गई है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज पूरी। ओके। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटरीज, दीज आर ये फॉर्मेशन ऑफ छोटे छोटे आइलैंड, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड डेल्टा। ओके। कौन दुविधा किसी को? नहीं। हाँ, अब जो बिल्कुल कटाव वाले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों पे बिल्कुल, मतलब कि एक पहाड़ को ही पूरे काट के एक शेप दे देंगे, दैट इज कॉल्ड इंसाइज्ड मियंडर। उसको हम बोलते हैं इंसाइज्ड मियंडर। और जो सीढ़ी टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हम रिवर टेरेसेस। किसी भी ये अपन को पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है, जब नदी इतनी बड़ी हुआ करेगी, होती होगी, जब उसका लेवल कम होता गया, तो उसकी वजह से ये टेरेसेस फॉर्म होते गए, क्योंकि वो पहले उसने ऊपर वाला एरिया काटा, फिर नीचे वाला मतलब फिर कम हो गई तो नीचे वाला एरिया काटा, फिर और कम हो गई तो नीचे वाला एरिया काटा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट्स व्हाट वी कॉल, क्या कहते हैं इसको? रिवर टेरेस। क्लियर? तो ये चीज़ तो अपन को कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी, पहले इरोजन होगा, फिर डिपोजिट, क्योंकि इरोडेड जो मटेरियल है वो डिपोजिट भी होगा। जो इरोडेड मटेरियल है वो डिपॉजिट भी होगा, और डिपॉजिट मतलब वो डिपॉजिट कैसे होगा, उसका पहले ट्रांसपोर्टेशन होगा। जो भी इरोडेड मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या हो जाएगा? वो डिपॉजिट हो जाएगा। वहाँ पे आर्किटेक्चर फॉर्मेशन बोलेंगे, यहाँ पे अपन को डिस्ट्रक्शन मिले को दिखेगा, वो कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, देन देयर इज अ डिपोजिशन। ये अपन को पूरी चीज़ें हर जगह देखने को मिलेंगी, जहाँ पे भी अपन लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हर जगह अपन को ये चीज़ देखने को मिलेगी। और किसी को यू शेप वैली, बी शेप वैली और कैनियन में अंतर समझना है, तो उसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स बना रखे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। क्लियर? बाकी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, अगर आपको अगर ये आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका बेसिक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और बेसिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो वी आर रनिंग अ कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें अभी ज्योग्राफी का सेशन ही चल रहा है, जिसमें आप डेली बेसिस पे क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी को देख सकते हैं, मतलब आपका जो अपने बेस है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्लियर? हर एक जगह का यही है कि जहाँ पे भी इरोजन होगा, वो पहले इरोडेड मटेरियल होगा, यहाँ पे सेडिमेंट्स निकलेंगे, जो कि फिर ट्रांसपोर्ट होंगे, और ट्रांसपोर्ट होके कहीं जाके इकट्ठे हो जाएंगे, दैट इज डिपोजिशन। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कन्वेयर की तरह, और यहाँ पे अपन को आर्किटेक्ट होते हुई चीज़ें दिखेंगी। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन पुट इट इनटू आवर कमेंट बॉक्स। किसी को भी कोई डाउट हो तो यू कैन पुट इट इनटू आवर
कमेंट बॉक्स के ज़रिए या फिर तुम मैसेज भी कर सकते हो। हमने लगभग सारी चीज़ें देख ली हैं नदियों के बारे में तो। चलिए, चलिए नेक्स्ट कम टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ये नदियों के सारे हो गए। और दूसरा जो पानी अपन को बहता हुआ दिखता है वो कहाँ दिखता है? फ्लूवियल में ही आते हैं वो भी। फ्लूवियल मतलब जहाँ पे भी नदी के वजह पानी की वजह से ही होता है डिस्ट्रक्शन। दैट इज आर कोस्टल। ठीक है। तो जो भी कांस्टेंट बैटल होती है किसके बीच में, अपने नदी जो समुंदर और ज़मीन के बीच में, बिटवीन लैंड एंड सी, तो उसके दौरान हमें कुछ फॉर्मेशंस एंड डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं। जहाँ पे मेनली पावर क्या रहती है, इंजन विंड्स, क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो काय के से बहता है, विंड्स के फोर्स से। और जो पानी बहता है फिर वो कुछ स्ट्रक्चर से या तो टकराता है, या टकराता है तो वो यहाँ पे इरोजन देखने को मिलेगा, या फिर वहाँ पे आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करता दिखेगा। ये इरोजन और कंस्ट्रक्शन आपको दो टाइप के लैंडफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। अगर वो जो ज़मीन है वो समुंदर से उठी हुई है, ऊपर की तरफ उठी हुई है, उसके लिए बैरियर का काम कर रही है, देन देयर विल बी डिस्ट्रक्शन, इरोजन देखने को मिलेगा। ठीक है। और जहाँ पे जो नदी है, जो लैंड सरफेस है वो समुद्र के पानी से नीचे है और पानी आसानी से ऊपर जा सकता है और आसानी से वापस आ सकता है, तो वहाँ पे अपन को कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। और बाकी तो जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से जो चीज़ें होती हैं वो तो होती हैं, वो इफेक्ट तो अलग है, लाइक भूकंप वगैरह आने की वजह से, या फिर सुनामी वगैरह के आने की वजह से जो डिस्ट्रक्शन, इरोजन और डिपोजिशन होता है, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स है। लेट्स सी। तो मेनली इंजन क्या है, हाउ एयर प्रेशर बिकम हाइड्रोलिक पावर। पहले तो जो एयर पावर अपर लेवल ऑफ एयर सिंक्स एंड एयर प्रेशर क्रिएट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इनिशियल डिस्टर्बेंसेस, एंड द वेव अप्रोचेस द shore, and the friction from the beach slows the part of the wave. The upper part continues to move forward at a speed, causing it topple and break. ठीक है, नीचे वाला पार्ट तो रुक जाता है लेकिन ऊपर वाला स्पीड में रहता है हवा की वजह से। इस तरीके की हवा से लहरें इकट्ठी होती हैं, वो लहरें जब टकराती हैं एक फ्रिक्शन जनरेट करती हैं, और उसकी वजह से इरोजन और डिपोजिशन हमें देखने को मिलते हैं। इनके लिए जो टर्म यूज किया गया है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें टकराती हैं, दैट इज कॉल्ड सर्फ जोन। उसे मेनली क्या कहा जाता है? सर्फ जोन कहा जाता है। अपर पार्ट मूव, और जब लहर आती है दैट इज कॉल्ड स्वैश, जब वो वापस जाती है दैट इज कॉल्ड बैकवॉश, और जो बीच वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड सर्फ जोन। As the water runs up to the beach, this is the constructive phase. The movement of water back down to the beach, driven by gravity, this is the destructive erosive phase. Clear? अब जब जमीन उठी हुई हो फिर तो सीधा सीधा पानी इससे टकराएगा, और टकराएगा तो डिस्ट्रक्शन होगा, इरोजन होगा। सीधा सीधा पानी बार 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 कंटिन्यूसली टकराएगा, दिस इज कॉल्ड नॉस्ट क्लिफ। ये पूरी क्या है? एक नॉस्ट क्लिफ है। ये सीधी सीधी दिख रही है आपको। ओके। तो यहाँ पे अपन को मल्टीपल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जैसे ये पानी जब टकरा रहा है इस पे, तो आप देख रहे हो ये केव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बार बार बनता जा रहा है, तो ये और गहरा होता जाएगा। एंड इस गहरे स्ट्रक्चर को ही हम बोलेंगे केव। क्या बोलेंगे? केव। The process, the wave attacks the base, creating nose cliff, the rock above unsupported। और जो ऊपर की जो रॉक है वो एक टाइम ये इतना गहरा हो जाएगा, इतना गहरा हो जाएगा कि इस पे ग्रेविटी भी अपना काम करने लग जाएगी, और इसका वजन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये वाला पार्ट इसे झेल नहीं पाएगा, और ये वाला पार्ट क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। तो उसकी वजह से मल्टीपल लैंडफॉर्म्स अपन को देखने को मिलेंगे। The process repeats, causing the cliff to retreat inland. As the cliff retreats, it leaves behind a wave-cut platform, gently sloping. Eroded sediment from the wave built terrace or platform underwater. जो टूट के गिरता है या तो वो अंदर कुछ बना लेता है, या टेरेसेस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। या तो हमें इसकी वजह से जब ये पूरा बेस हट जाए तो या तो अपन को क्या देखने को मिल जाता है? लैंडस्लाइड हो जाएगा यहाँ पे। पहले यहाँ पे ये क्लिफ हुआ करती थी, अब ये एकदम से पूरी ढरक गई, क्योंकि
यहाँ पे नीचे कुछ बेस ही नहीं बचा। बाकी जो अपन को मेनली स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जब अपलिफ्टेड कोस्टल एरियाज पे, तो वो ये है कि भाई पानी टकराता गया तो एक अंदर गहराई तक क्या बन गई, केव बन गई। क्या बन गई? केव बन गई। अब वो जो केव थी वो आर पार हो गई, तो देन इट इज कॉल्ड सी आर्क। उससे बिल्कुल एक रास्ता टाइप का बन गया। ओके। और जब ये इतनी गहरी हो गई एकदम से, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या करेगा, कोलैप्स कर गया। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड। तो इधर वाला पोर्शन जो है उसे कहेंगे हम सी स्टैक। क्या कहेंगे? सी स्टैक। और जब बार बार टकराते टकराते इसका ये वाला पार्ट भी क्या कर गया, कोलैप्स कर गया, तो हमको क्या लगता है बच्चा? स्टम्प। क्या बचा? स्टम्प। किसी को कोई दिक्कत? नहीं। और जब ये बार बार पानी टकराता, केप बनने से पहले कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉच। दैट इज कॉल्ड नॉच। और सिंपल जब स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा तो दैट इज कॉल्ड सी क्लिफ। क्या कहेंगे? सी क्लिफ। तो हम पहले सी केप देखा, फिर सी आर्क बना, सी आर्क से सी स्टैक बना और स्टम्प बना लास्ट में। क्लियर? बाकी जो पानी है जब ऐसे बीच में गैप बन जाए, जब पानी गया तो एकदम से ऊपर से उछल के आएगा, दैट इज कॉल्ड ब्लो होल। क्या कहते हैं इनको हम? ब्लो होल। ठीक है। और ये इतना गहरा हो जाए, एक पूरा ही सेक्शन अंदर तक चला जाए पानी का, दैट इज कॉल्ड जीव। क्या कहते हैं? जीव। व्हेन द रूफ ऑफ द केव कोलैप्स। जब किसी कोई यहाँ पे पूरी केव थी, उसकी पूरी रूफ क्या कर गई, कोलैप्स कर गई, तो एक पूरा एक नाला सा बन गया। इट फॉर्म्स अ लॉन्ग नैरो इनलेट और क्रीक, दैट इज कॉल्ड जीव। और जब क्या होता है, अ होल इन द रूफ ऑफ द केव कॉज्ड बाय इमेंस हाइड्रोलिक प्रेशर। एक छोटा सा छेद बन गया, बस वो छोटा सा रूप का केव घट गया। तो जब ये पानी टकराता है तो वो पानी उस छेद से बाहर निकलता है फाउंटेन की तरह, दैट इज कॉल्ड ब्लो होल। क्या कहते हैं उसे? ब्लो होल। ठीक है। दीज आर ऑल द इरोजनल लैंडफॉर्म। ये सारी थी इरोजनल लैंडफॉर्म, क्या की कोस्टल पान जो समुद्र के पानी की वजह से हो रही थी। अब आते हैं अपन कौन से? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पे। किस पे? डिपोजिशनल। व्हेन वेव लूजेस एनर्जी दे ड्रॉप देयर लोड। जब वेव ऊपर चली जाती है तब तो आती है, तब तो एनर्जी में, लेकिन वापस जाती है तब तक उसको हवा का सपोर्ट नहीं मिलता। जब एलिवेशन की वजह से उसे पीछे जाना पड़ता है, तो वो अपने साथ जो मटेरियल लाई जाती है वो सबको छोड़ती हुई जाती है। दिस इज द इसी का कारण है वो बीचेस का फॉर्मेशन। द बीचेस कंटेन एक्सेसिवली स्मॉल पेबल्स एंड इवन कॉबल्स रादर देन जस्ट फाइन सैंड। ठीक है। एज अ नोटेड इन प्रीवियस स्लाइड, सेडिमेंट्स ड्राइव फ्रॉम द इरोजन सेटल टू फॉर्म अंडर वाटर टेरेसेस। और जो वहाँ पे जो अपन देख रहे थे, कौन सा एरिया जो टूट के गिर रहा है, कहाँ पे? अपलिफ्टेड एरियाज में। ये तो बीचेस बनेंगे जहाँ पे एरिया पानी से नीचे की तरफ होगा। पानी जहाँ पे इजीली मूव कर सकता है, तो वो अपने साथ जो मटेरियल लाए तो उसे वापस छोड़ के चला जाएगा। जैसे मैंने ये बताया था कि बारिश टाइम पे जब पानी नाले भर जा बनते हैं तो चारों तरफ पानी पानी, जैसे वापस जाते हैं तो कुछ काला काला छोड़ जाता है, क्योंकि उनके पास लौटते वक्त इतनी ताकत नहीं रहती कि वो अपने साथ वो सामान ले। ऐसे ही पानी जब आता है समुद्र ऊपर जमीन पे तो अच्छा खासा सबका सामान लेके आता है, लेकिन वापस जाता है तो वो वहाँ पे शेल्स वगैरह, रेत वगैरह, छोटी छोटी चीजें छोड़ जाता है। वैसे ही अगर अपलिफ्टेड एरिया में बात करें, तो अपलिफ्टेड एरिया में तो आपको पता है वो सीधा सीधा तोड़ रहा है, और तोड़ के वो सामान कहीं तो गिरेगा, गिरेगा तो नीचे पानी के अंदर। पानी के अंदर वेव्स नहीं चल रही तो अंदर एक टेरेस फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। अंदर के अंदर टेरेसेस टाइप ऑफ क्रिएट हो जाएंगे। अब ये देखते हैं कि कुछ जो डिपोजिशन की वजह से अपन को चीजें देखने को मिलेंगी, मेनली तो बीचेस देखने को मिलेंगी, जिन्हें हम बीचेस कहेंगे। ठीक है, दिस इज बीच। अब ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे वेव बार बार टकरा रही है, तो यहाँ पे भी वेव बार बार टकरा रही है। अब यहाँ पे वेव जब बार बार टकरा रही है, तो यहाँ से उसको ऐसे मूव करके जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा फोर्स नहीं लग रहा, तो यहाँ पे भी सेडिमेंट क्या करती जाएगी, वो इकट्ठे करती हुई जाएगी। यहाँ पे भी वो क्या करती जाएगी, सेडिमेंट्स को इकट्ठे करती हुई जाएगी। सेडिमेंट्स को क्या करती हुई जाएगी, इकट्ठा करती हुई जाएगी। और वो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते 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 एक ऐसा बैरियर स्ट्रक्चर बना, दैट इज कॉल्ड स्पिट। दैट इज कॉल्ड स्पिट। एक बिल्कुल पिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्पिट। अब जो स्पिट जो है वो इतना लंबा हो जाए कि एक पूरे वाटर बॉडी को, मतलब ये यहाँ पे जो स्पिट यहाँ पे बन रहा था, ठीक है, यहाँ से पानी जा रहा था, यहाँ पे जो स्पिड बन रहा था वो इतना बड़ा, और यहाँ पे भी बन रहा था, इतना बड़ा होता गया, इतना बड़ा होता गया कि इसने पूरे पार्ट को ही, जो मेन समुंदर है उससे जो ये वाली वाटर बॉडी उसे बिल्कुल अलग कर दिया। तो ये वाली जो वाटर बॉडी जो अलग हुई है, इसे कहेंगे हम लगून। क्या कहेंगे? लगून। और इसको बोलेंगे बेमाउथ बार। इसको क्या बोलेंगे? बेमाउथ बार।
और जब बीच में बिना किसी और मतलब ना किसी को तोड़ रहा है ना जोड़ रहा है, तो तब उसे बोलेंगे ऑफ शोर बार। क्या बोलेंगे? ऑफ शोर बार। एंड दैट इज कॉल्ड टोम्बोलो। कि जब अभी तो वो एक वाटर बॉडी को अलग कर रहा था, दो एक ही जमीन के दो हिस्सों को एक कर रहा था, लेकिन जब दो जमीन के हिस्सों को वो एक कर देगा तो देन इट कॉल्ड टोम्बोलो। टोम्बोलो एक तरीके से हम अपने राम सेतु को भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो श्रीलंका और इंडिया को क्या करता है, एक करता है, एक पर्टिकुलर ब्रिज टाइप का, दैट इज कॉल्ड टोम्बोलो। उसे इस्तमस भी कहते हैं बाय द। ठीक है। allowing sediments to accumulate in the lee until the bridge is formed। अब आगे देखते हैं ड्राउन रिवर वैलीज, मतलब कि जब समुंदर अंदर जमीन में घुसता है तो उसकी वजह से कुछ अलग अलग टाइप के कोस्ट और देखने को मिलते हैं। जब समुद्र का पानी लैंड में कुछ इस तरीके से अंदर इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से कुछ ऐसे स्टेट ऑफ लैंडफॉर्म देखने को मिले जहाँ पे ब्रांचेस हो और ये अंदर समुद्र का ही पानी है, देन इट इज कॉल्ड रियाकॉस। उसको क्या बोलते हैं? रियाकॉस। ये पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा, जमीन में मेनली यहाँ पे सारे ये क्या पहाड़ है, और पहाड़ों के अंदर ये घुसता हुआ, जैसे नदी का रास्ता था ये, पहले यहाँ से कोई नदी आती होगी, लेकिन ड्यू टू वाटर लेवल राइज हो गया तो समुद्र का पानी अंदर घुस गया, तो दैट इज कॉल्ड रिया कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? द कॉस्ट आर फॉर्म व्हेन द लैंड इज लोअर्ड लो करंट सी लेवल। जब लो करंट सी लेवल था तब बनाता है पानी की वजह से। नाउ नॉन ग्लेशिएटेड आइलैंड कॉस्ट बिकम सबमर्ज। अब जो थे वो सबमर्ज हो चुके हैं पानी की लेवल के बढ़ने से। नाउ वैलीज आर फिल्ड विद वाटर। जिस जगह से वो पानी आया करता था, जहाँ पे कभी ग्लेशियर्स हुआ करेंगे, तो उन ग्लेशियर्स की वजह से ये ट्रेंचेस छोटी छोटी बनी थी, यहाँ से पानी बह बह के समुद्र में आके मिलता था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो ग्लेशियर पिघल गया और यहाँ पे पानी का राइज हो गया, तो समुद्र का पानी उन गैप्स में भर गया, दैट इज कॉल्ड। तो दैट इज एग्जाम्पल नॉर्थ स्पेन में देखने को मिलेगा और वेस्टर्न आइलैंड। ये है जॉर्ड। जॉर्ड में क्या हो, एक पूरा का पूरा ग्लेशियर था बीच में, ये इन जमीन के अंदर। ठीक है, वहां से थोड़ा थोड़ा पानी करके एक समुद्र में जाके मिलता था, लेकिन यहाँ पे जो ग्लेशियर था वो पूरा का पूरा पिघल गया, और वो जो पानी था वहाँ का पानी लेवल बढ़ गया, तो इस पैसेज के थ्रू इस जगह पे, इस गड्ढे पे जो गड्ढा बना ग्लेशियर की जगह पे, वहां पे अब समुद्र का पानी भर गया, दैट इज कॉल्ड जॉर्ड। दैट इज कॉल्ड जॉर्ड। डेल्मेशियन। डेल्मेशियन शायद आपने डॉग देखा हो, एक डॉग की ब्रीड है जिसपे व्हाइट 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 चिट्टे होते हैं, और पूरा सॉरी ब्लैक 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 चिट्टे होते हैं, वो पूरा व्हाइट होता है। तो वैसे ही जब एक पूरे समुद्र में आपको जैसे छोटे 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 मल्टीपल आइलैंड देखने को मिले, और उनके चारों तरफ समुद्र, चारों तरफ समुद्र, चाहे आप जापान आइलैंड की बात कर लें या फिर और भी यूगोस्लाविया वगैरह, तो ये सारे कहते हैं इन्हें हम डेल्मेशियन। और लॉन्गिट्यूडल देखने को मिलेंगे, सीधे सीधे एक लाइन में। ठीक है, इट इज कॉल्ड डेल्मेशियन। बाकी आ जाए डेल्टा एंड एस्चुरी। तो डेल्टा की हमने देख ली थी कि भाई जब नदी आती है तो नदी जब कमजोर हो जाती है यहाँ पे, तो मल्टीपल ब्रांचेस बनाती है, तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा। लेकिन एस्चुरी कब बनती है? जब वो ब्रांचेस ना बनाए और सीधे आके किसमें, समुद्र में मिल जाए। उसकी वो ब्रांचेस ना बने, वो सीधी आके क्या करें, समुद्र में सीधा का सीधा मिल जाए विदाउट मेकिंग एनी ब्रांचेस, देन इट इज कॉल्ड एस्चुरी। क्या बोलते हैं उसे फिर? एस्चुरी। ठीक है, ये जब बनेगा, जब आपको मैंने बात की, जब अपलिफ्टेड लैंड हो और फिर यहाँ पे वाटर लेवल क्या हो, कम हो गया हो, तो उसकी वजह से जो गिरा हुआ सामान था उसमें कुछ टेरेसेस बनाए हुए थे कुछ बीच, तो वो अपन को ये टेरेसेस ऐसे नॉर्मली देखने को मिलेंगे। द कोस्ट हैज बीन रेज। जो कोस्टल एरिया है वो रेज हो गया है, कि या तो ड्यू टू लेवल, पानी का लेवल नीचे गिर गया है, ठीक है, या फिर क्रिस्टल राइज की वजह से, जो क्रिस्टल टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से या तो कोस्ट ऊपर चला गया, या फिर पानी के लेवल के नीचे होने की वजह से अंदर का कोस्ट है वो बाहर आ गया। तो हमें ये ऐसा कुछ सरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपन को बीचेस देखने को मिलेंगे, कैसे रेस्ट, ऐसे टेरेस वाले। दूसरे फॉसिल्स यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे गिरा था, तो उस टाइम पे जो अपलिफ्टेड लैंड थी, जो उसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल फॉसिल्स अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। क्लियर? और ये ओल्ड कोस्ट लाइन है। जब ये पुराने, जब ये समुद्र यहाँ तक था तब ये कोस्ट लाइन थी, लेकिन जब समुद्र अंदर के नीचे की तरफ चला गया, तो अब ये सारे रेस्ड बीचेस है, और यहाँ पे अपन को दम से फॉसिल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें दबी होंगी। ओके, एंड दिस इज कोस्टल प्लेट्यूज भी कहते हैं ना, नॉर्थन पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। आप अपने नॉर्थन पार्ट को देखें, कौन से? वेस्ट कोस्ट के, मुंबई हाई वगैरह, वहीं पे अपन को फॉसिल फ्यूल भी तो मिलते हैं, गुजरात वगैरह।
लिथोस्फीयर, तो दिस इज अ, अपन ने दो टाइप के स्ट्रक्चर देखे कोस्टल लैंडफॉर्म में। जब अपलिफ्टेड लैंड हो तो उससे पानी टकरा टकरा के तोड़ तोड़ के उसको शेप दे देता है, लेकिन जब लो लैंड हो, पानी से ज़्यादा हो, तो हमें कुछ डिपॉजिट करके एक नया लैंडफॉर्म भी दे देता है। So this is an active system. Energy from the atmosphere transferred to the hydrosphere. This energy attacks the lithosphere, breaking it down. The debris is recognized to build a new landforms. Meanwhile, the global tectonic forces raise and lower the stage on which the drama plays out. Even coastline we see today is merely a snapshot in geological time. बाकी आपकी इंग्लिश की क्लासेस आपको पता है चल ही रही हैं। आज भी आपकी 12 बजे टी टी एस में दिव्यांशी मैम इंग्लिश की क्लास लेके आती हैं, उसे मिस मत करना। अब आते हैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स पे, जो ग्लेशियर की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर की वजह से कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं सर, के क्या होता है कि मेन जो रिस्पॉन्सिबल रीजन होते हैं, द मूविंग मास, द ग्लेशियर इज नॉट स्टैटिक। हमेशा ग्लेशियर को कभी मत सोचना ग्लेशियर स्थिर नहीं रहता। ग्लेशियर क्या है, एक मूविंग मास है। वो भी क्या करता है, कंटिन्यूसली क्या करता है, वो भी क्या करता है, मूव करता है, कंटिन्यूसली मूव करता है। उस मूवमेंट की वजह से हमें कई सारे इरोजन और डिपोजिशन देखने को मिलेंगे, और उसकी वजह से मल्टीपल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्लेशिएटेड लैंड। Glacier is not static, it is a river of ice acting as a dynamic system। ठीक है। होता कैसे है कि मेनली तो क्या होता है कि एक रॉक है, चुपचाप रॉक रखी है, उसमें पानी भर गया और धीरे धीरे वो जम गया तो उसकी वजह से रिवर आइस क्या करती है, एक्सपेंड करती है, तो उसकी वजह से उसमें क्रैक्स आ गए, वो फट गई रॉक। उसके बाद वो आइस क्या कर गई, पिघल गई, या पिघल गई तो पिघलने की वजह से अब वो जो फटी हुई रॉक थी वो भी टूट गई, तो दैट इज कॉल्ड इरोजन। तो फिर से ये प्रोसेस बार बार होगा, वाटर एंटर्स, फ्रीज होता है, फिर शैटर होता है। तो ये बार बार अपन को देखने को मिलेगा। टूल्स ऑफ इरोजन, इरोजन के मेनली टूल्स क्या होंगे, जब वो क्या करेगी अपनी मूव करेगी, कोई भी ग्लेशियर मूव करेगा, तो जब ये चारों तरफ पानी था तो बीच में कोई रॉक होगी, वो रॉक भी इस पानी के अंदर फंस गई है, वो पानी के अंदर फंस गई है, और पानी मतलब जम चुका है, वो बर्फ के अंदर एक रॉक फंसी हुई है, वो जुड़ी हुई है इसमें, लेकिन जब ग्लेशियर मूव करा तो उस रॉक को लेके चला गया, दैट इज कॉल्ड प्लकिंग। उसको क्या बोलते हैं हम, प्लकिंग, क्या बोलते हैं, प्लकिंग। और जब वो पूरा इतना बड़ा ग्लेशियर मूव कर रहा है तो उसकी वजह से जो जमीन पे जो घिसाव हो रहा है, जो फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से जो सेडिमेंट्स उखड़ उखड़ के आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एब्रेजन, जिसे सैंड पेपर भी बोलते हैं, एक सैंड पेपर की तरह काम कर रहा है उस पे, जमीन पे। और उस पे से जो सामान है, जो उबड़ खाबड़ है, उसको अगर ये बिल्कुल स्लिपरी होगा तो बिल्कुल इजीली चला जाएगा विदाउट फ्रिक्शन, लेकिन जब स्लिपरी नहीं है तो ये क्या करेगा, इसको क्रैक करता हुआ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एब्रेशन। अब जब रॉक प्लग हुई एक तरफ से जहाँ से उखाड़ के लेके आए, तो वो उसे बोलते हैं हम ली साइड, और जहाँ से बिल्कुल वो स्लाइड करती हुई उसकी वजह से ऐसा सरफेस बन गया, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट साइड। ठीक है। और जहाँ पे पूरा ये ग्लेशियर हुआ करता था तो उसके चारों तरफ जो जमीन, जहाँ से वो ग्लेशियर मूव करता था, या ग्लेशियर जो पूरा हिलता था, तो उसकी वजह से ऐसे कटाव बिल्कुल चिकना सा पूरा चारों तरफ लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सर्क्यू, दैट इज कॉल्ड सर्क्यू। और उसके बीच में अगर पानी भर जाए तो उसे बोलते हैं टान, टान लेक। क्या बोलते हैं, टान लेक। ठीक है, उसके आसपास जहाँ से ग्लेशियर के क्रैक, जहाँ से ग्लेशियर ने क्रैक हुए, पानी भर भर के जो क्रैक बनाए, उन्हें बोलते हैं वर्कशॉप। ठीक है, तो जब चारों तरफ ग्लेशियर बना, उस चारों तरफ ग्लेशियर के कोने पे एक नुकीले नुकीले से ऐसे हॉर्न देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, हॉर्न। और अगर वो पूरे अगर एक एक निकला हुआ है तो हॉर्न, अगर वो पूरी चेन टाइप of बनी हुई है चारों तरफ, लाइक पूरा एक बॉर्डर टाइप का बना हुआ है ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड एरिटी। क्या बोलते हैं, एरिटी। एक नाइफ एज रिज सेपरेटिंग टू बॉडीज। ठीक है, ऐसा कब मिलेगा आपको, जब दो ग्लेशियर्स हो, दोनों ग्लेशियर्स एक जगह पे हो, तो दोनों के बीच का एरिया जो है ऐसा आपको देखने को इजीली मिल जाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हैंगिंग वैली। जो उसके अपलैंडेड है एरिया है, यहाँ पे पूरे पे ग्लेशियर है, लेकिन ये जो अपलैंडेड एरिया है जहाँ से पानी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग वैली। ओके। जो बिल्कुल कोर एरिया है किसका, किसका, ग्लेशियर का, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल ट्रफ, ग्लेशियल ट्रफ। और जो बीच बीच में ऐसे एरिया जो बिल्कुल ऐसे सेपरेट कर रहे हैं मल्टीपल ग्लेशियर्स को, दैट इज कॉल्ड ट्रंकेटेड स्पर्स, या ज्वाइंट कर रहे हैं।
कन्वेयर बेल्ट का क्या काम करता है भाई, एक पूरा का पूरा कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है ग्लेशियर। उसके अंदर जो भी वो इरोड करके मटेरियल साथ में, अब वो मूव कर रहा है तो मूव करने के साथ जो उसने इरोड किया मटेरियल उसे भी साथ लेके जा, इरोड किया हो ना किया हो, वहाँ जो भी रखा है उसे वो अपने साथ लेके चल देगा। दैट्स व्हाई इट वर्क्स एज अ कन्वेयर बेल्ट। तो वो जो साथ लेके चलता है उन्हें हम कहते हैं क्या, मोरेन। क्या कहते हैं, मोरेन। जो सेडिमेंट्स है वो साथ में लेके चलता है राइडिंग द आइस, उन्हें हम क्या कहते हैं, जो डेब्रिस वो अपने साथ लेके चलता है उसे कहते हैं मोरेन। अब मोरेन तीन टाइप से देखने को मिलता है। एक होता है ग्राउंड मोरेन, जो कि बिल्कुल उसके ग्लेशियर के सबसे नीचे नीचे वाला जो अपने साथ लेके आ रहा है, नीचे दबा हुआ जो उसके साथ चला आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड मोरेन। लेटरल मोरेन जो साइड पे इकट्ठा करता हुआ जा रहा है, जब वो जा रहा है तो साइड में जो अपने साथ छोड़ लेके आया है और साइड में फोर्स की वजह से छोड़ता हुआ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लेटरल मोरेन। और जो मीडियल मोरेन है, जो बिल्कुल बीच में सेंटर में जो उसके साथ जम गया है, जब ग्लेशियर आया तो ग्लेशियर जब था उसके सेंटर में जो जम गया है या सेंटर में एक चेन टाइप का बन गया, दैट इज कॉल्ड मीडियल मोरेन। जब वो मूव कर रहा है बिल्कुल सेंटर, ठीक है। टर्मिनल मोरेन जहाँ पे ग्लेशियर एंड हुआ, वहां पे जहाँ पे ग्लेशियर रुका वहां ग्लेशियर के एंड पे बिल्कुल मटेरियल उसने जो खसेर के लेके आया था वो वहां पे छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल मोरेन। उसे क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल मोरेन। ग्राउंड मोरेन में आपको डिसऑर्गेनाइज्ड पाइल दिखेंगे, रॉक्स ऑफ वेरियस शेप्स दिखेंगे, साइज डिफरिंग रॉक्स है। मीडियल मोरेन में आप फाउंड द जंक्शन बिटवीन टू ग्लेशियर्स। मीडियल मोरेन, जब दो ग्लेशियर्स आपस में यहाँ पे मिलेंगे तो उसके बीच में जो मटेरियल जम जाएगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड मीडियल मोरेन। ठीक है। टर्मिनल मोरेन जहाँ पे एंड होगा, लेटरल मोरेन तो साइड में एजेस पे जो मटेरियल वो छोड़ते जाएंगे अपने साथ जो लेके आ रहे थे। जब भी आप कोई चीज गाड़ी ऐसे चलाओगे तो उसके साथ मतलब कोई भी आपने देखा होगा, अगर बचपन में कभी खेले हो, अगर ट्रक चला रहे हो सैंड में, तो जो रेत आपने भरी या फिर जो धक्का देते हुए लेके जा रहे हो, वो धीरे धीरे करके साइड में इकट्ठी होती जाती है ना, और नई आती जाती है, दैट इज कॉल्ड लेटरल, लेटरल मोरेन। ठीक है। और बाकी जो उसके मूवमेंट की वजह से अपन को मल्टीपल लैंडफॉर्म्स देखने को और मिलेंगे, जिसको हम अलग अलग बोल्डर्स होंगे वो अलग अलग जमीन के अलग अलग फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। तो कुछ होंगे ड्रमलिन, जो ऐसा कुछ फॉर्मेशन, चिकना फॉर्मेशन जो ले लेंगे जहाँ पे इजीली आइस मूव करके चलेगी, दैट इज कॉल्ड ड्रमलिन। ठीक है। एस्कर्स देखने को मिलेंगे, जो बीच में जो छोटे छोटे मुरेन्स थे, मुरेन्स इकट्ठे हो गए, जम गए, और जमने के बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पूरा इकट्ठा कर दिया, एक रिज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पूरा बन गया, दैट इज कॉल्ड एस्कर। और वो अगर डोम लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है तो दैट इज कॉल्ड कामे। जो भी सेडिमेंट उसके आए थे, जो डिपॉजिट्स हैं, जो पर्टिकुलर, ये देखो आपको पता है ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर में क्रैक्स होते हैं, क्रैक से पानी बह रहा होता है, कंटिन्यूसली पानी बह रहा होता है, उन पानी के थ्रू जो मुरेन्स जा रहे थे वो वहीं की वहीं अगर जमते इकट्ठे होते गए, इकट्ठे होते गए और एक सॉलिडिफाई होते गए, तो दैट इज कॉल्ड एस्कर। ठीक है। और कहीं पे जाके वो पानी इकट्ठा हो गया तो जो मुरेन्स थे वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए, दैट इज कॉल्ड कामा, कामेश्वर। आउटवॉश प्लेन, ब्रॉड सरफेस जहाँ पे पहले कभी ग्लेशियर हुआ करता था लेकिन अब वो पानी हो गया, तो उसके जो पूरा एरिया था जिसमें वो रहता था, दैट इज कॉल्ड आउटवर्स्ट प्लेन। ठीक है। पूरा एरिया था जहाँ पे ग्लेशियर हुआ था वो आउटवर्स्ट प्लेन, और जहाँ पे उस ग्लेशियर का थोड़ा सा पानी रह गया पिघलने के बाद, दैट इज कॉल्ड कैटल लेक। क्या कहते हैं, कैटल लेक। ग्लेशियर जब मूव करता है तो कुछ चीज़ें बनाते हुए जाता है, या तो वो हाईलैंड्स बनाएगा जब ऊपर से आता है, तो ऊपर से जब उसका पानी या वो खुद मूव करता है तो उसको हाईलैंड बनाता है। ठीक है। हाइट पे से। अदर देन दैट, जब वो पूरे सरफेस पे आ जाता है तो वैलीज क्रिएट करता है, इजीली मूव करता है, और जब बिल्कुल लो लैंड पे आ जाएगा देन इट कैन क्रिएट ड्रमलिन्स, एस्कर्स एंड ऑल एंड, जब बिल्कुल प्लेन सरफेस पे आ जाए। कुछ इस टाइप से टान लेक हमने देख लिया, हॉर्न देख लिया, रेडेड एंगल, सर्की हमने देखा, ग्लेशियर ट्रफ देख लिया, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ, ड्रमलिन्स हमने देखे, एस्कर्स हमने देखे, लेटरल मोरेन, टर्मिनल मोरेन, ओल्ड क्ले हमने, कैटल लेक देखे, काम देखा है, ऑल एंड ऑल। हाँ, बोल्डर्स ऑफ कंसिडरेबल साइज आर डिपॉजिटेड फ्रॉम देयर ओरिजिन। कुछ बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं जो कि इरोड नहीं होते, किसी नहीं होते, बीच उसमें ग्लेशियर में होते हैं और वो एज इट इज ही रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एरेटिक। उन्हें क्या कहते हैं हम, एरेटिक। क्लियर। चलिए अब कास्ट टोपोग्राफी पे आ जाते हैं, मतलब कास्ट जो कि मोस्टली मोस्टली कॉजेज ड्यू टू द ग्राउंड वाटर। अब ये भी फ्लूवियल में ही है, और ये फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से आएंगे।
अभी अपन फ्लूवियल में ही चल रहा है, ग्लेशिएटेड में भी फ्लूवियल ही रहता है, पानी बह रहा है उसकी वजह से। अब आ जाते हैं हम किसमें, ग्राउंड वाटर की मूवमेंट। अब जब ग्राउंड वाटर अंदर का ग्राउंड वाटर मूव करता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे इरोजन हमें देखने को मिलते हैं। अब मोस्टली ये इरोजन हाईएस्ट हाईएस्ट अपन को कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे अपन को देखने को मिलता है लाइमस्टोन, मोस्टली लाइमस्टोन, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है और इजीली वाटर सॉल्युबल होता है, वहाँ पे हमें ये बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। क्लियर? मेनली ये ग्राउंड वाटर की वजह से मिलेंगे, ग्राउंड वाटर के मूवमेंट की वजह से हमें मल्टीपल लैंडफॉर्म देखने को मिले। अब क्या बात है, जब ग्राउंड वाटर मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, तो उसने कहीं पे पानी जो है मल्टीपल डिस्टिंक्ट सिंक होल से ये पानी अंदर ग्राउंड में जाता है। अब ये पानी जो अंदर ग्राउंड में जा रहा है, ये पानी यहाँ पे कहीं इधर क्रैक क्रिएट कर रहा है, इधर क्रैक क्रिएट कर रहा है, वो मल्टीपल क्रैक से ऐसे जमीन के अंदर बहना चालू कर देता है, और ज़मीन के अंदर बहना चालू कर देता है, और ज़मीन के अंदर बहते-बहते क्या कर देता है, ये दोनों को, इन दोनों होल्स को क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा, सिंक होल्स को। सिंक होल कैसे बने? सिंक होल से वो जो पानी बह रहा था ज़मीन के अंदर, तो वो छोटा-छोटा ऊपर से आपने रोड के देखे होंगे, रोड पे जब कई बार क्या होता है बारिश के टाइम पे रोड धँस जाती है, और वो नाले बाहर अंदर नीचे क्योंकि नाले चल रहे होते हैं या कोई कुछ भी चल रहा हो, तो पूरी की पूरी रोड धँस जाती है और पानी आ जाता है। तो वैसे ही जब पानी नीचे बह रहा होता है, तो वहाँ के जो सॉफ्ट लैंड है, वो सॉफ्ट लैंड होती है, वो क्या होती है, नीचे कोलैप्स कर जाती है जल्दी, या तो मतलब धीरे-धीरे कर ही रहती है, वो वज़न नहीं झेल पाती, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड सिंक होल। सिंक कर गए, क्या कर गए? सिंक कर गए, जिसकी वजह से होल बन गया, दैट इज़ कॉल्ड सिंक होल। अब जब 2 सिंक होल आपस में मिल जाएँ, मतलब 2 सिंक होल बन गए और 2 सिंक होल आपस में क्या कर जाएँ, कनेक्ट कर जाएँ, इरोड होते, अभी तो ये गिरे, फिर इधर का पानी भी बहता, इधर पानी बढ़ता गया और ये भी कनेक्ट हो गया, ये भी पानी बहता गया, इसने भी इरोड करके इसको भी, पार्ट को भी कोलैप्स कर दिया। इस पूरे पार्ट को भी कोलैप्स कर दिया, बीच वाले पार्ट को, तो देन इट इज़ कॉल्ड स्वैलो होल। अब ये पूरा बहुत बड़ा स्वैलो होल बन गया। पहले छोटे-छोटे पॉट होल्स मान लो, पॉट होल से सिंक होल मान लो, सिंक होल से पूरा स्वैलो होल मान लो, ठीक है? पहले सिंक होल बने, फिर स्वैलो होल बने, और कई सारे स्वैलो होल मिलके बना लेंगे डोलाइन। क्या बना लेंगे? एक बड़ा डोलाइन। इसको बोलते हैं क्या? डोलाइन। स्वैलो होल जिसमें कार की गाड़ी निकल जाए पूरा का पूरा, लेकिन डोलाइन जो पूरा उस जगह का एरिया ही निकल गया, ठीक है? और कई सारे वो डोलाइन हैं, वो इकट्ठे मिल जाएँ तो ऐसा लगेगा कि मतलब ये पूरी की पूरी एक वैली ही क्रिएट हो गई, पूरी की पूरी एक नहर ही बन गई। कई सारे डोलाइन थे, उनके भी बीच के गिर गए, तो कई सारे डोलाइन एक साथ पूरी एक नहर ही बना डाली, दैट इज़ कॉल्ड उबाला, या फिर वैली सिंक। एक पूरी वैली बन जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड उबाला। क्या बोलेंगे? सिंक होल मिलके बने स्वैलो, स्वैलो होल मिलके बना डोलाइन, डोलाइन मिलके बनाएँगे उबाला, ठीक है? अब जहाँ पे पानी बह रहा है अंदर, सिंक होल, वो अंदर ही इस जगह पे पानी बह रहा था आराम से, यहाँ की सॉफ्ट लैंड थी, यहाँ से पानी घूम रहा था, और यहाँ की लैंड क्या कर गई, कोलैप्स कर गई। ओके, तो ये ग्राउंड वाटर से यहाँ से कनेक्ट हो जाए। और अंदर जो केप्स है, अब वो जो सिंक कर गया है, तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा है, तो कैल्शियम सॉल्युबल है लेकिन पानी में है, उसे हम सॉल्ट फॉर्मेशन में देख सकते हैं। तो जब वो पानी अपनी स्पीड में नहीं होगा और कहीं से बिल्कुल रिसाव कर रहा होगा, तो वो जो अपने साथ में मटेरियल है, जो कैल्शियम लेके आया था, उसे वहीं वो ड्रॉप करेगा, वहीं छोड़ेगा। तो ये इसी की वजह से हमें ये स्टेलसेटाइट और स्टैग्मेटाइट का फॉर्मेशन दिखेगा। जब वो रॉक में कहीं केव्स में पानी बिल्कुल चिचा रहा होगा, तो वो अपने साथ यहाँ पे धीरे-धीरे कैल्शियम जो सॉल्ट है उसे छोड़ देगा यहीं पे। वो सॉल्ट उस वहीं पे इकट्ठा होता जाएगा और एक नई रॉक का फॉर्मेशन कर देगा, दैट इज कॉल्ड कैल्साइट। द डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन, उसमें कैल्शियम grows downwards like pillars, these formation hang tightly from the surface crack well jointed, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैल्साइट। और जब वो वाटर ड्रॉपलेट जमीन पे गिर रही होगी, तो वहां पे भी कुछ वो पानी तो चला जाएगा, लेकिन वहां पे वो सॉल्ट या लाइम सॉल्ट रह जाएगा, कैल्शियम रह जाएगा, वो भी एक नए रॉक को फॉर्म कर देगा, एक नए पिलर टाइप का, दैट इज कॉल्ड कैल्गामाइट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैल्गामाइट। ये ग्राउंड से जो निकलेगा वो स्टैलग्माइट G4, और जो काय से निकलेगा, ऊपर से निकले रूफ से जो निकलेगा वो स्टेलसाइट। बाकी जो पूरे के पूरे दोनों स्टेलसाइट और स्टैग्मेटाइट कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पिलर। ओके, यार इट इज स्टेलसाइट, स्टैग्मेटाइट, पिलर्स। यहाँ पे जो वाटर ड्रॉप कर रही है ऊपर से, उनकी वजह से ओनली सिंक होल्स वाले होल्स के नीचे देखने को
अब आ जाते हैं यूलियल पे। ग्लेशिएटेड देख लिया हमने, ग्राउंड वाटर देख लिए, कास्ट मतलब कास्ट इसी को बोलते हैं जो अपन ने पढ़ा है। अब देखते हैं यूलियल, जो हवा की वजह से होते हैं। हवा में इसलिए हवा सबसे ज़्यादा टाइट कहाँ पे होती है, जहाँ पे मॉइस्चर ना हो। हवा वहाँ पे सॉफ्ट नहीं रहती, वहाँ पे वो हवा कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्श। और वो हार्श हवा जब हार्श, जैसे कि अब सर्दियों में हवा हार्श हो जाती है, उसमें मॉइस्चर नहीं रहता, तो हमारी स्किन को फाड़ देती है वो। वैसे ही जब हवा जहाँ पे हार्श हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, एओलियर इरोजन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि डेजर्ट्स हैं, आपको पता है डेजर्ट्स में हवा में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहता, तो हमें और साथ में वो हवा में अपने साथ वो रेत के छोटे छोटे सेडिमेंट्स को लेके भी दौड़ता है, तो वो जब टकराते हैं और वो हवा जब टकराती है, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स या इरोजन और डिपोजिशन दोनों देखने को मिलेंगे। मोस्टली जो एरिया है जहाँ पे ये अपन को देखने को मिलेगा, वो पूरे एरिड बेल्ट, मतलब कौन से, ये जो ट्रॉपिकल अपर ट्रॉपिकल जोन जो रहता है, वहाँ पे अपन को ये देखने को मिलेगा। अपर ट्रॉपिकल जोन जो दिख रहता है, वहाँ पे अपन को ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, 15 से 30 डिग्री वाले इलाके में। की फैक्टर क्या है भाई, कोल्ड करंट रहते हैं, इसकी वजह से मॉइस्चर नहीं होता है हवा में, और एवेपोरेशन नहीं मिलता है ओशन से, दिस इज कॉल्ड, इसकी वजह से हवा में बिल्कुल हार्श हो जाती है, और रेनफॉल यहाँ पे बिल्कुल लो होती है, जिसकी वजह से बिल्कुल हवा क्या हो जाती है, बिल्कुल हार्श हो जाती है। ऊपर से जो हवा हार्श है, वो अपने साथ साथ में सॉलिड पार्टिकल्स को बिना मॉइस्चर के, तो वो सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट नहीं तो हार्ड है, तो आपस में टकराते हैं मिड एयर, एंड इट कॉजेस डिफ्लेशन। यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है डिफ्लेशन, याद रखना। ये अपन को कहाँ पे देखने को मिलेगा, एओलियल लैंडफॉर्म्स में। हवा की वजह से रिमूवल ऑफ लूज सरफेस पार्टिकल बाय विंड। जो सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक में जो सॉफ्ट रॉक वाला एरिया होगा, वो उस हवा के टकराने से टूट जाएगा, गिर जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेफलेशन। ओके। ऑल्सो नोन एज कोरोजन जिसे बोलते हैं, जिसको एरोजन कोरोजन, बार बार सैंड से ब्लास्टिंग, सैंड के ब्लास्टिंग इफेक्ट ऑफ विंड बॉर्न एंड सैंड अगेंस्ट रॉक सरफेस। जो हवा है, हवा के साथ जो सैंड है, दोनों एक पूरा क्या एक ब्लास्टिंग कॉम्बिनेशन बना लेंगे, जैसे हम सैंड ब्लास्टिंग बोलेंगे, बार बार रॉक से टकराएगी, एंड दैट इज कॉल्ड सैंड ब्लास्टिंग। कॉन्टिनेंटलिटी देखने को मिलेगा। क्लियर। अब ये जो रीजन है, अपन को ये चीज़ें देखने को मिलेंगे। मल्टीपल टाइप ऑफ डेजर्ट होते हैं, सैंडी डेजर्ट होता है, स्टोनी होता है, रॉकी होता है, बेडलैंड्स होते हैं, और माउंटेन डेजर्ट होता है। ये हर जगह पे कहीं पे ये पूरे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होते हैं। इनमें अपन को पूरे ग्रेवल्स, ज़्यादा पत्थर जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है। इधर अपन को बेयर रॉक्स देखने को मिलेंगे, एंड डस्ट देखने को मिलेगी, सहारा डेजर्ट की बात करें एग्जाम्पल में। ठीक है, बाकी ये बैडलैंड्स होंगी, रवाइन्स जो होती हैं यहाँ पे, जैसे चंबल की रवाइन है, अपने चंबल में आपको बिगड़ जो देखने को मिलता है, इट्स बैडलैंड्स। ओके। बाकी माउंटेन डेजर्ट्स होते हैं, जहाँ पे सिर्फ माउंटेन होंगे और हवाएं दौड़ रही होंगी, तो सब जगह पे अपन को अलग अलग क्या, अलग अलग टाइप के क्या देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर। तिब्बती जो है, तिब्बत माउंटेन है, तो जो कोल्ड डेजर्ट मान लो उसको। तो बाकी एक सैंडी डेजर्ट होगा, जहाँ पे अपन को सैंड देखने को मिलेगी, तुर्कमेनिस्तान वाला इलाका। अब इनकी वजह से अपन को मल्टीपल लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे, इसमें से एक मिलता है अपन को द्रिकांतेर। द्रिकांतेर के साथ क्या होता है कि हवा जब एक रॉक रखी हुई है, उसके ऊपर जब हवा बार बार टकराती है, तो उसका ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट टूटता जाता है, कोरड होता जाता है, मतलब इरोड होता जाता है। इरोड होने की वजह से ऊपर वाला पार्ट नुकीला हो जाता है, नीचे वाला पार्ट मोटा रहता है, क्योंकि हवा ऊपर पड़ रही है। तो ऐसा एक वेंट इफेक्ट और एक दिकांतर बन जाएगा। स्टोन विच वन आर मोर हाईली पॉलिश्ड, फ्लैटेंड और फेसेड क्रिएटेड। बार 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 टकने की वजह से एक तो वो नुकीला होता जाएगा, ऊपर से बार बार टकने की वजह से पॉलिश होता जाएगा, बिल्कुल चिकना होता जाएगा। ओके। विंड एक्ट्स एज अ नेचर सैंड पेपर। कैसे काम करेगी, एक नेचर के सैंड पेपर की तरह, प्लेनिंग ऑफ द साइड ऑफ द स्टोन फेसिंग द प्रिवेलिंग ऑफ विंड। उस साइड को बिल्कुल क्या कर देगा, चिकना कर देगा, जिस साइड पे हवा आती है उस पर। न्यू फेस है तो उसको एक नया चिकना हुआ, बिल्कुल थ्री साइडेड पिरामिड स्ट्रक्चर दे दे। इसे बोलते हैं हम मशरूम रॉक। क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक, जिसमें हवा जब नीचे चलती है, बड़ी मशरूम बड़ी रॉक हो, और आपको पता है जब यहाँ पे हवा चल रही है, साथ में सैंड लेके घूम रही है, तो हवा नीचे थोड़ी ज़्यादा घूमेगी, मतलब डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, उसमें सैंड ज़्यादा है। और बार 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 इससे टकरा रही है बड़ी रॉक से, तो उसका जो निचला वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, इसको क्या कर देगी, इरोड कर देगी, और हमें एक मशरूम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड मशरूम स्ट्रक्चर। ठीक है। ऊपर से ऊपर वाला जो पार्ट है वो हार्ड मेनली है, नीचे वाला पार्ट है वो सॉफ्ट रॉक है, तो ये लेस रेजिस्टेंट है, जिसकी वजह से ये इजीली क्या हो जाता है, इरोड हो जाता है। फिर आ जाता है यारदांग। यारदांग्स की बात करें तो यारदांग्स में आपको एक पर्टिकुलर ऐसे वैलीज टाइप ऑफ देखने को मिलेंगे, ऐसे वैलीज टाइप ऑफ देखने को मिलेंगे।
ऐसे बार-बार आपको क्या देखने को मिलेंगे, वैली वैलीज़ टाइप ऑफ देखने को मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक टेबल लाइक जब आपको पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिले, बड़ा-सा एरिया है, ठीक है? और ऊपर वाला हार्ड रॉक है, नीचे वाला सॉफ्ट रॉक है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर बना दैट इज़ कॉल्ड ह्यूगन। क्या बोलेंगे इसको? ह्यूगन, ठीक है? और बाकी धीरे-धीरे एक जो पूरा प्लेट्यू है, उसमें अगर आपको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट टेबल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड मेसा, और ऐसे सिंपल स्टम्प टाइप ऑफ द बट, बिल्कुल ऐसे स्टन में बिल्कुल ऐसे ये होते-होते ऐसे गुंबद सा बन जाएगा दैट इज़ कॉल्ड इंसल्ट। क्या बोले? जब पूरा सरफेस था देन प्लेट्यू, जब वो कट के इतना सा रह गया देन इट इज़ कॉल्ड मेसा, देन इट इज़ बट, जब स्टम्प टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाए एक सिंपल पोल सा लेकिन स्ट्रेट, देन जब वो ऐसा गोल गुंबद सा हो जाए देन इट इज़ कॉल्ड इंसल्ट, ठीक है? नाउ देयर इज़ अ डिपोज़िशन, नाउ देयर इज़ डिपोज़िशन। तो डिपोज़िशन की बात करें तो इसमें जो प्रोसेस में जो मटेरियल होता है वो मूव करता है, और मटेरियल मूवमेंट की वजह से यहाँ पे अपन को डिपोज़िशन जो देखने को मिलता है, उसकी वजह से मल्टीपल लैंडफ़ॉर्म्स देखने को मिलते हैं। व्हेन द विंड वेलोसिटी ड्रॉप, जब विंड की वेलोसिटी ड्रॉप हो जाए तो वो जो मटेरियल लेकर आई थी वो इट कैन नॉट कैरी इट्स लोड, डिपॉज़िट मटेरियल, तो वहाँ पे नए-नए क्या लैंडफ़ॉर्म्स क्रिएट होते हैं। जब वो हवा जो थी जब वो स्लो हो जाए या उसमें मॉइस्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, भारी हो जाए, तो वहाँ पे ही वो अपना क्या छोड़ने लग जाती है, मटेरियल छोड़ने लग जाती है, वहाँ पे अपन को नए-नए लैंडफ़ॉर्म जो फाइन ग्रेन्ड बिल्कुल छोटे-छोटे पार्टिकल जिन्हें हम क्या कहेंगे, लॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉइस कहेंगे, जो कि उड़ते हुए बढ़िया आ रहे थे लंबे टाइम से चलते हुए। सैंड बिल्कुल छोटा-सा कोर्सर ग्रेन्स, छोटे-छोटे ग्रेन्स जो कि लुढ़कते-पुढ़कते साथ में आ रहे थे, ठीक है? और उनको हम कहेंगे सैंड। छोटे-छोटे पार्टिकल जो लुढ़कते हुए आ रहे, लोसेस जो बिल्कुल हवा में बिल्कुल साथ में उड़ते हुए आ रहे हैं। इन दोनों से ही हमको नए डिपोज़िशनल लैंडफ़ॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ट्रिपल मार्क, ऐसे जब ये मार्क्स ऐसे क्रिएट हो जाएँगे दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपल मार्क ऑन द सर्फेस। फिर आता है ये अपन को ये 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। जब एक मून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्रिसेंट स्ट्रक्चर, देन इट इज़ कॉल्ड बारखान। क्या बोलते हैं? बारखान, जिसमें विंड की डायरेक्शन क्या किससे रहती है? इस साइड से। इसके अपोज़िट साइड से। तो जब विंड सीधी-सीधी आ रही है तो इधर-इधर करके ऐसे मटेरियल इकट्ठे करती हुई जाती है, और इसके ऊपर से ऐसे मूव करते हुए निकल जाती है। तो यहाँ पे भी मटेरियल छोड़ती हुई जाती है, और कोने में तो मटेरियल छोड़ ही रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड बारखान। और जब वो पैराबोला लाइक स्ट्रक्चर बन जाके, जब कोई स्ट्रक्चर रखा हुआ है बड़ा-सा, हवा की स्पीड कम हो गई है और यहाँ पे टकरा रही है, और यहाँ पे मटेरियल छोड़ती हुई जा रही है, ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती जा रही है। यहाँ पे ऐसे एक बाइक ट्रैक का ऐसा जैसे वो ट्रैकिंग होता है ना, जंप करने के लिए क्या बोलते हैं, ट्रैक जो बोलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा विंड की साइड से, देन इट इज़ कॉल्ड बारखान। जब विंड के अपोजिट साइड से ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए गेट डेप्थ वाला, तो देन इट इज़ कॉल्ड पैराबोलिक, और पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनेगा बिल्कुल यू और सी शेप में, ठीक है? ट्रांसवर्स ड्यून्स, छोटे-छोटे ड्यून्स बनेंगे मल्टीपल जगह पे, दैट इज़ कॉल्ड स्टार ड्यून्स भी कहते हैं इन्हें, ठीक है? फिर आते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स, जहाँ पे हवा सीधी-सीधी चलती है और साइड-साइड में मटेरियल ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल वे में इकट्ठे होते जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून। देन देयर इज़ शीप ड्यून, जिसमें एक शीप टाइप स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, विंग्स टाइप स्ट्रक्चर बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शीप ड्यून, ठीक है? और जब यहाँ पे हल्की-फुल्की बारिश हो जाए, उसकी वजह से भी अपन को छोटे-छोटे लैंड वाले एक्शंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अगर इस एरिया में थोड़ी बारिश हो जाए, ये ईओलियल वाले या एरिड रीजन में, तो हमको क्या देखने को मिल जाए, यूलियल और फ्लूवियल के दोनों की वजह से शेर देखने को मिलेगा, शेर की जिसे कहते हैं, जिसमें क्या होगा, फ्लैश फ्लड होगी, जिसमें वो मिट्टी होगी उस पानी में बहुत ज़्यादा, मतलब क्या होगी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से वो कीचड़ टाइप का इलाका, और वो मूव करेगा तो उसकी पावर और उसकी सारी चीज़ें होंगी, और वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जब वो सूखेगा तो उसमें मिट्टी मडी और ऐसा क्रैक्ड वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड शेर। यहाँ पे पानी जब मिल जाए तो वो एक अलग ही शेप दे देता है। यहाँ पे लैक ऑफ वेजिटेशन अलाउड टू रिमूव मैसिव अमाउंट ऑफ डेब्रिस इन शॉर्ट पीरियड। अगर पानी आ जाए तो पानी यहाँ पे चूँकि कोई प्लांटेशन नहीं है, बिल्कुल कोई मॉइस्चर नहीं है, तो वो जो ज़मीन पे जो मटेरियल है वो या जो सैंड है वो पकड़ा हुआ नहीं है। वो ईज़िली पानी के साथ क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसकी वजह से अपन को फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलती हैं, और फिर अलग-अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जैसे कि रिल्स देखने को मिलेंगे, ईज़िली जहाँ से छोटा-छोटा बिल्कुल पतली-पतली धार का पानी निकल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिल्स, ठीक है? बड़ा जो शेप निकल रहा है उसको बोलते हैं वादी और अरोयो, क्लियर? और जो एन्क्लोज़िंग माउंटेन्स हैं जहाँ से वो निकल रही है। जहाँ पे ये पानी पहुँचेगा, ये जब पूरी मिट्टी को साथ में लेके यहाँ तक गया, दैट इज़ कॉल्ड एलुवियल फ्लैट। ये पूरा क्या हो जाएगा?
एलुवियल फैन, और जो इसका एंडिंग पॉइंट होगा, जो फुटेल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड बाजदा। इसको क्या बोलेंगे? बाजदा। जो बिल्कुल लास्ट पोर्शन होगा, पेडिमेंट स्लोप बिल्कुल बोलेंगे इसको, ठीक है, पेडिमेंट स्लोप बोलेंगे इसको। आफ्टर मैथ ऑफ प्लाया की बात करेंगे तो जो जब यहाँ पे ये जो माउंटेन्स थे, अगर ये बीच एरिया में जहाँ पे जो पानी भर गया हल्का सा, दैट इज कॉल्ड प्लाया लेक। हल्का सा जो पानी भरा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लाया लेक। उसके बगल वाले एरिया को वाटर टेबल। और जहाँ पे पहले जब प्लाया लेक बड़ा होगा, या फिर बड़ी लेक हुआ करती होगी, लेकिन यहाँ पे जब पानी वापस चला गया तो ये ओल्ड सलाइन लेक डिपॉजिट। दिस इज प्लाया लेक, शैलो, टेम्परेरी एंड सॉल्टी। जब पानी बरसा तभी, बाद में ये सूख जाते हैं। हमेशा हम देख चुके हैं प्लाया एलुवियल फैन, मैंने बताया बिल्कुल जहाँ से वो पानी आया लास्ट में, और जो छोड़ गया एलुवियल फैन, उसके लास्ट का जो फुटेल वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड बाजदा। यहाँ कहीं आपको पानी भरा मिल गया बीच रेगिस्तान में, इसकी वजह से दैट इज कॉल्ड प्लाया लेक। बट बर्ड्स अपन देख चुके हैं, यारदांग वेंट्री फैक्ट में ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। फ्लूवियल फीचर्स के बाद ही बाजदा प्लाया, विंड इरोजन की वजह से यारदांग में बारखान, सेफ ड्यून्स एंड ऑल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी अपन को देखने को मिलती है। बाकी आपको ये सारी एज इट इज, ये आपको ये पीडीएफ आपको एज इट इज काय पे मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल, और you can get all this PDF that you are looking at right now of Landform. You can directly have it from our Telegram channel with all the क्या कहते हैं, all the instructions as well. Other than that, you can contact us on these following contact numbers as well, where we can help you directly. Okay, here also you can take these PDF files. Other than that, our live lectures are continue to on 2 बजे आपके मैथमेटिक्स के टीचर ऑन MWF, 10 बजे मैं ज्योग्राफी लेके, आपको शाम को 5 बजे शिवम सर, और 12 बजे इन आपका TTS इस दिव्यांश में। फॉर टुडे लेट्स कॉल इट अ डे, और आगे के अब इस टॉपिक के हमारे PYQs रह गए, जो हम अपने अगले सेशन में निपटाएंगे। तब तक के लिए